Hello everyone, hope you all are really doing well. Welcome to Current Affairs Point 101. Today we will be discussing some of the most important current affairs related today, that is 3rd of July 2021. So let's get started and I hope the content is worthful for you. If it was, do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. So without wasting much time on this, let's get started with the content, right? So the first content on which we will be discussing is European Space Agency to hire first disabled astronaut. तो यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने रिसेंटली डिसेबल्ड फर्स्ट डिसेबल्ड वर्ल्ड के पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को हायर किया है स्पेस में भेजने के लिए. सो बेसिकली देयर मेन मोटो इज टू गिव द मैसेज दैट स्पेस इज फॉर एवरीवन. तो स्पेस इज फॉर एवरीवन के मोटो के अंदर में दे आर गोइंग टू सेंड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट टू स्पेस. एक और चीज, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर पैरा एस्ट्रोनॉट्स. तो पैरा एस्ट्रोनॉट्स आर द डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट्स. तो उनके लिए जो स्पेशल सुविधा या फिर स्पेशल बंदोबस्त करनी पड़ेंगी वो जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही हैं. Right now, the second point that is not related, but I guess it was important, so I have included in that. So Amazon's founder Bezos, the Amazon company के जो founder है Jeff Bezos, he is going to be the first person to go into the space with his own rocket, private rocket, in July 2021. So this is the first news on discussion, and the next point of discussion would be world's second biggest hydro dam turns on China. तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो है जिसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए मेन पर्पसली बनाया जा रहा है, दैट विल बी launching in China very soon. Obviously it is already on process. It has been said in the news that world's second largest dam is the main purpose of making this dam is to generate electricity. Then Bhetan dam is set up on Jinsa river. तो जिंसा रिवर में जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाया जा रहा है, that is present in the southwestern part of China, right? So the capacity of this dam is around 1 million electrowatt. So इसमें से जो चीजें हमें याद रखनी है, that is चाइना में वर्ल्ड का दूसरा सबसे लार्जेस्ट सबसे बिगेस्ट डैम बनाया जा रहा है और उसकी कैपेसिटी जो है इट्स अराउंड 1 मिलियन इलेक्ट्रोवाट. और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट डैम वर्ल्ड का कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है. फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ, बात आई है यहाँ पे चाइना की. तो चाइना की तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होंगी. तो चाइना की जो प्रेजेंट में लीडर हैं, दैट इज शी जिनपिंग. देन द करेंसी दे यूज, दैट इज रेमबनी. एंड द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग. सो ये तीन पॉइंट मैंने आपको बता दिए. ये तीन पॉइंट हर कंट्री, जो भी कंट्री आएगा इन कंट्रीज के इन तीन पॉइंट को अगर आप साथ में लेकर चलोगे तो आपको एक्स्ट्रा करेंसीज फिर लीडर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So a third point of discussion है Philippines include in the FATF grey list. So FATF, that is Financial Action Task Force. So Financial Action Task Force की grey list में Philippines को शामिल किया गया है. So in the year 2000, Philippines has been included in blacklist, but recently the list has been changed and the Philippines is currently in the grey list of Financial Action Task Force. अब बात आई है फिलीपींस की, तो अब देख लेते हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी के बारे में. एज आई हैव सेड इट्स इंपॉर्टेंट. सो प्रेसिडेंट है फिलीपींस के, दैट इज रॉड्रिगो ड्यूटेरे. तो रॉड्रिगो ड्यूटेरे जो है वो है प्रेजेंट में प्रेसिडेंट. देन कैपिटल ऑफ फिलीपींस इज मनीला एंड द करेंसी दे यूज इज पेसो. तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. So Sefali Burma became India's youngest to make debut in all format. So Sefali Burma जो है, she is a cricketer, she is an Indian cricketer. Yes, Indian woman cricketer. So yeah, so she is an Indian woman cricketer who who is the youngest in India. Yes, of course, in India to make debut in all format. So she is the fifth youngest cricketer in the world. So अगर हम world के level पे देखें तो she is the fifth youngest cricketer, but India के level पे देखें तो she is the first youngest cricketer to make debut. Okay, so debut बनाने वाली वो भारत की पहले सबसे youngest player है और वर्ल्ड की फिफ्थ सबसे youngest player है.
right? So at the age of 17, she is just 17, and she made debut against England in ODI held in Bristol. So ODI against England in Bristol, she have made her debut. So अफगानिस्तान मुजीबुर रहमान, so अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान जो है वो भी approximately 17.5 years like half years हैं, और she is around 17 years and 150 days, and he is little more younger. So yeah, अफगानिस्तान के जो मुजीबुर रहमान है, he is the youngest player in all format, and he is under the first category. And हमारी इंडिया की जो शिफाली वर्मा है, she is on the fifth position. Fine. Now let's move forward towards the fifth point of discussion. So the fifth point of discussion is ICC Men T20 World Cup to be held in UAE. तो आईसीसी मेन का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इस बार यूएई में खेला जाएगा. नाउ व्हाई? सो बिकॉज आप जानते हो कि इंडिया में कोविड का सेकेंड वेव भी था. इट वाज रियली अ हेक्टिक सिचुएशन, सो दैट्स व्हाई बीसीसीआई हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट द वर्ल्ड कप टू यूएई ड्यू टू कोविड केसेस. सो कोविड केसेस की वजह से बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो यूएई में होगा. नाउ लेट्स सी, बीसीसीआई की बात आई है तो हमें जानना होगा बीसीसीआई के प्रेजेंट प्रेसिडेंट के बारे में. दैट इज सौरभ गांगुली जो है वो है प्रेजेंट बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, एंड द सेक्रेटरी इज जय शाह, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई इज लोकेटेड इन मुंबई. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बीसीसीआई से रिलेटेड जो हमें जानना इंपॉर्टेंट है, और ये भी जानना है कि यूएई में इस साल का आईसीसी मेन टी20 होने वाला है. Fine. Now let's move forward towards the sixth point of discussion. So sixth point of discussion is the important days. So important days को डिस्कस करते हैं. इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे. तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे हम मनाते हैं 30 जून को, और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाते हैं 30 जून को. सो दोनों ही दिन हम 30 जून को मनाते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ में लिखा हुआ है, सो दैट कंफ्यूजन डज नॉट अकर्स. ओके. So International Asteroid Day, the main aim is to raise awareness about the asteroid impact hazard and various other hindrances due to asteroids in the communication. तो हम communication के लिए जो waves use करते हैं जो कि हम अपने स्पेस में भेजते हैं, and then it come back. So due to asteroids the communication process get hindered. So for that we celebrate International Asteroid Day on 30 June. Now the another day is International Day of Parliamentarism. So International Day of Parliamentarism को मनाने का main purpose है to review the progress of working of Parliament. तो Parliament के कार्यकाल को, मतलब पार्लियामेंट में जो भी काम चल रहा है, टू look at the progress on that. So that's why International Day of Parliamentarism has been launched. Fine. Now let's move forward towards the सेवन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो सेवन पॉइंट है डिस्कशन का, एक इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च किया गया है, तो उस बुक को लेकर हम डिस्कस करेंगे आज. सो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस बुक रिलीज हुई है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट बुक. सो एनोमलीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस बुक रिलीज हुई है, रिलीज किया गया है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना के द्वारा. यस, ये अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि एन.वी. रमन्ना कितने नंबर के, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया में. दैट्स द क्वेश्चन फॉर द डे. सो प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रिलीज किया है बुक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, और जो जिन्होंने लिखा था वो बुक दैट इज आर.वी. रविंद्रन. सो आर.वी. रविंद्रन हैज रिटन द बुक एनोमलीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस. So the book is all about the critical system of law and its critical application. तो book में basically ये कहा गया है, ये लिखा गया है about the critical system of law and how it could be applied. So that is all about the book Anomalies in Law and Justice. So now let's move forward with the eighth point of discussion. So that is first woman cricketer to get dope ban. So dope ban is basically बहुत सारे जो players है, they use some additives such as narcotics or certain things like that to boost up their performance, but which is really not legal. So for that a dope test has been done, but मतलब इंडिया की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जो है जिन्हें डोप बैन कर दिया गया है, दैट इज
Anshula Rao. So Anshula Rao is the first cricketer, all-rounder cricketer, of course, under women's category to dope ban after fail to pass the dope test. तो डोप टेस्ट को पास ना करने की वजह से she has been banned for 4 years, and she belongs to the state of Madhya Pradesh. तो मध्य, kindly pardon, so the correct spelling is state, yes. So अंशुला राव जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, एंड शी हैज बीन बैंड फॉर 4 consecutive years, sorry, 4 years, continuous years. Now the ninth point of discussion. So Asia's longest and world's fifth longest high speed track has been launched. तो एशिया का सबसे लंबा और वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट स्पीड ट्रैक जो है वो लॉन्च हो चुका है. सो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज प्रकाश जावड़ेकर had inaugurated Natrix. So Natrix है जो हाई स्पीड ट्रैक का जो नाम है, दैट इज Natrix. द हाई स्पीड ट्रैक इज लॉन्च्ड इन इंदौर. सो बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए दैट एशिया का लॉन्गेस्ट स्पीड ट्रैक जो है इंडिया में है. इंडिया के इंदौर में Natrix लॉन्च हुआ है, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ heavy industries and public affairs, that is Prakash Javadekar. Now the main purpose of this project was to to check out जो भी automobiles manufactured होंगे उनके checking के लिए this track will be used, and this project is developed. ये जो project है वो बहुत ही बड़ा project है, and it was developed in an area of around 1000 acre of land, and the world class track is around 11.3 किलोमीटर. 11.3 किलोमीटर लंबा है ये ट्रैक, एंड जो टोटल प्रोजेक्ट का जो एरिया है दैट इज अराउंड 1000 एकड़. नाउ तो आपको जो मेन चीज इसमें याद रखनी है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट और सॉरी एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट स्पीड ट्रैक जो है वो इंडिया के इंदौर में रिसेंटली लॉन्च हुआ है. राइट. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द डे. Shambhunath Srivastava appointed as chairman of IFUNA. So IFUNA is basically Indian Federation of United Nations Association. सो रिसेंटली इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दैट इज शंभुनाथ श्रीवास्तवा, इन्हीं के बारे में कहा गया है. सो जान लेते हैं इनके बारे में, इनकी लाइक इन्होंने इनकी क्या अचीवमेंट्स है. सो ही वाज द बेसिकली ही वाज द फॉर्मर जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड वाज द चीफ ऑफ लोक आयुक्त इन छत्तीसगढ़. तो वो रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के. अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज आल्सो द चीफ ऑफ लोक आयुक्त इन छत्तीसगढ़. सो प्रेजेंटली अब उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का. सो द मेन पर्पस और द मेन मोटो ऑफ IFUNA, that is Indian Federation of United Nations Association, is to promote the objectives of United Nations. तो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में ऑब्वियसली प्रमोट करने के लिए ये एसोसिएशन जो है बनाया गया है. So here comes the end of the 10 most important current affairs for the day. So I hope it was worthful for you. If it was, do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. Yes, and stay tuned because tomorrow sharp at 7 a.m. again we will be back with the current affairs series and it will continue. So stay tuned till then. Bye bye. Jai Hind.